Hi guys, welcome back to my channel. I am सिद्धार्थ and आज का जो लेक्चर है आज हम लोग जो चैप्टर 3 है लिविंग लाइफ चैलेंजेस हम आज इसको कंप्लीट कर देंगे एंड मैं साथ साथ में साइमल्टेनियसली फिर क्वेश्चंस हैं इसके तो क्वेश्चंस कर लिए हमने जो हमारा दूसरा चैप्टर है थेराप्यूटिक अप्रोचेस वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है आप मेरे चैनल में देख सकते हैं एंड जो थेराप्यूटिक अप्रोच के क्वेश्चंस होंगे मैं कभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और है ना एक्स्ट्रा में लाऊंगा तो साइमल्टेनियसली हम लोग सेल्फ पर्सनालिटी कंप्लीट करेंगे मतलब 3-4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे एंड हम लोग थेराप्यूटिक अप्रोचेस जो है उसको भी मतलब क्वेश्चंस के साथ मतलब करेंगे सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेस एंड हेल्थ स्ट्रेस एंड पीपल विद स्ट्रेस आर अनहैप्पी ऑफ कोर्स जिसको स्ट्रेस है वो खुश नहीं है तो वेरी अनहैप्पी दे फॉल सिक उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा नहीं होता कम हो जाता है दे फॉल सिक diverse and individuals attention for caring for oneself और herself chronic disease diverse and individual वो अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं कि अपने आप को ज़्यादा ख्याल नहीं रखते they don't look after themselves when stress is prolonged affects physical health, impairs psychological functioning due to high stress and little support available from family and friends. ज़्यादा support नहीं मिलता from family, from friends. People experience attitudinal problems. बहुत attitude मतलब attitudinal problems हो जाते हैं. Physical exhaustion हो जाता है. Chronic fatigue, low energy, weakness, mental exhaustion, irritability, anxiety, feelings of helplessness and hopelessness. The state of फिर burnout का ये question आएगा guys. ये वाला important. Very important. what is what what do you mean by burn out? Sorry guys about my handwriting. तो बर्नआउट क्या है द स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन उसको हम बर्नआउट कहते हैं stress can produce changes in the immune systems and increase the chances of someone becoming ill तो स्ट्रेस जो इम्यून सिस्टम है वो हो जाता है कम और उससे क्या होता है हमें ill हो जाता है we become ill risk of developing cardiovascular disorders high blood pressure psychosomatic disorders ulcers हो जाते हैं asthma allergies headaches stress plays an important role in 50 to 70% of all physical illness स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 50-70 ऑफ ऑल फिजिकल इलनेस इसमें 60% ऑफ मेडिकल विजिट्स आर प्राइमरली फॉर स्ट्रेस रिलेटेड तो 60% आर मेडिकल visits for stress related symptoms GAS general adaptation system who who discovered this the father of modern chess Hans Seyle उनका नाम लिखो तो Hans Seyle SELYE So Seyle studied what happens to the body when stress is prolonged by subjecting animals to a variety of stresses. High temperature, X-rays and insulin injections in the laboratory for a long period of time. He also observed patients with various injuries and illnesses in hospital. He noticed a similar pattern of body responses in all of them, which he called the general. तो उन्होंने क्या किया था हैंड साइड में उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं उनको एक एक्सपेरिमेंट करना था तो उन्होंने लैबोरेटरी में उन्होंने मतलब एनिमल्स को लिया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया दैट जो ही नोटिस अ सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सेस सबका सिमिलर पैटर्न था विच वाज नॉन स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू हिम गैस इन्वॉल्व्स थ्री स्टेजेस alarm reaction stage resistance stage and exhaustion stage the presence of a noxious stressor or stimulus leads to an activation of adrenal pituitary cortex system. This triggers the release of hormones producing the stress response.
Now the individual is ready for fight or flight. तो क्या होता है अलाउ रिएक्शन स्टेज में प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसर नॉक्सियस स्ट्रेसर और स्टिमुलस उससे क्या होता है विद द इट लीड्स टू एन एक्टिवेशन ऑफ adrex adrenal pituitary cortex system उससे क्या होता है this triggers the release of hormones producing the stress response so इसकी वजह से trigger होता है and hormone release होते हैं and individual क्या है it ready for fight or flight resistance में क्या है if the stress is prolonged the resistance stage begins the parasympathetic nervous system calls for the more conscious use of body's resources the organism makes effort to cope with the threat as though confirmation exhaustion stage, continued exposure to the same stressor or additional stressors drains the body. मतलब इतना exposure हो के भी same stressor additional stressors add हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है हमारी body drain हो जाती है which leads to the third stage of exhaustion. The physiological system involved in alarms and response becomes ineffective. पहले शुरू में effective था but बाद में जाके it becomes ineffective and susceptibility to stress related disease such as high blood pressure it becomes more likely फिर हमें कुछ diseases आने लगे जैसे high blood pressure. Stiles model has criticized for assigning a very limited role to psychological factors psychological appraisal of events is important for the determination of stress की stress physiological जो है appraisal of events it is important for the determination how people respond to stress is substantially influenced by the perception personalities and biological constitutions तो criticize हुआ था और a lot of criticism कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स जो थे वो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल सॉरी तो जो हाउ पीपल रिस्पॉन्ड वो कैसे सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस्ड उनके परसेप्शन से उनके पर्सनालिटी और उनके बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रेस इन द इम्यून सिस्टम फिर लाइफ स्टाइल है गाइस फिर कोपिंग विद स्ट्रेस फिर हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम तो स्ट्रेस कैन कॉज इलनेस तो इसमें क्या होता है इसमें हम लोग तीन चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ मैंने अपने चैनल में बताया है मैं आपको मतलब ऐसे थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँगा इसमें मेरी चैनल में आप देख सकते हो तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम में इसमें हम लोग WBCs देखेंगे एंड उसमें क्या था उसमें वो इसके सेवरल टाइप्स देखेंगे जैसे T सेल्स B सेल्स और नेचुरल किलर्स राइट तो टी सेल्स क्या होता है दे डिस्ट्रॉय इम्यूनर्स मतलब जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है ना जैसे टी हेल्पर सेल्स जो है दैट अटैक बाय HIV which is human immunodeficiency virus and the virus causing AIDS acquired immunodeficiency syndrome T cells B cells क्या होते हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज है ना ताकि हमारी बॉडी में जो भी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिससे हमारा इम्यून कम है एंड वी आर likely to have any kind of disease तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है तो उससे हेल्प करता है और नेचुरल स्किल्स क्या होता है द इन्वॉल्व द फाइट अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स तो वायरसेस ट्यूमर्स नेचुरल किलर सेल्स हेल्प करती है फिर stress can affect natural killer of cell psychotoxicity, which is of major importance in the defense against various infections and cancer. Immune functioning is better in individuals receiving social support. Changes in the immune system will have more effect. Changes जो है more effect होगा उसमें among those whose immune system is already weakened. तो इसमें हमने मतलब देख लिया लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में हम बात करेंगे अबाउट हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर लाइफस्टाइल अगर स्ट्रेस होता तो हमें वी लीड एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर्स so people who are stressed have poor nutritional habits sleep less and they're likely to engage in other high risking health risking behaviors like smoking alcohol हमें फिर
हम उसका एडिक्टेड हो जाता है, वी ट्रेन टू इग्नोर देयर लॉन्ग टर्म डैमेजिंग इफेक्ट्स एंड अंडरवेज अ रिस्की रिस्क दे पोज टू आवर लाइफ। नाउ हमने लाइफ स्टाइल देखा कि हाउ स्ट्रेस जब आता है तो हाउ आवर लाइफ इज है ना अफेक्टेड होगा। जैसे मैंने बोला आपको कि हम लोग ने कुछ है ना रिस्क हेल्थ रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स, उसमें हम लोग ले लेते हैं एंड वी इग्नोर, हम लोग ज़्यादा अमाउंट में देन वी टेंड टू हैव मोर एडिक्शन है ना विद दैट। सो हम लोग कोपिंग विद स्ट्रेस पढ़ेंगे, कोपिंग में तो लाजरस पहले तो हम डेफिनेशन कोपिंग इज अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। It is a set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. So, coping in dynamic situation, specific reaction to stress. A concrete response is to stressful situation. Concrete response है where we are intended to resolve the problem and reduce the stress. तो हम लोग अभी एडलर और पार्कर ने हम लोग जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो है दिए थे, तीन दिए थे, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, एडवांस ओरिएंटेड एंड नेक्स्ट हम लोग लाजरस और फोकस दिए थे प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशनल फोकस्ड। Involves obtaining information about the stressful situation and about alternative courses of action and their probable outcome. Involves deciding priorities and acting so as to deal directly with the stressful. So task ओरिएंटेड क्या है कि हमारे प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी क्या है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। मान लो आप स्कूल से आते हो, आपको बहुत होमवर्क मिलता है, तो व्हाट वुड योर फर्स्ट प्रायोरिटी? पहले तो आप लोग आफ्टर लंच एंड सब हो गया तो आप सोचोगे कि चलो अपना होमवर्क कर ही लेते, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और इस टास्क को लेकर आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि आपको सबसे पहले काम क्या है, दैट इज द टास्क। इमोशन क्या है कि इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल फन, कि इमोशंस कंट्रोल करना है। इन्वॉल्व वेंटिंग ऑफ फीलिंग्स, मतलब पहले आप जो आपके इमोशंस जो ब्लॉक्ड है आप उनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालो, मतलब ऐसे तो किसी को निकालो नहीं, मतलब टेक आउट, मतलब आप किसी से बात करो, टेक आउट योर फीलिंग्स है ना, यू कैन ट्रस्ट। अवॉइडेंस, कि अवॉइडेंस मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी काम है जो भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक कोई फील्ड एग्जाम है ना, तो क्या हो रहा है आप सोच रहे हो कि चलो इसको मतलब हम एक मूवी देखते हैं या फिर हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं, हम मूवी देखेंगे पूरी रात, हम कुछ खाना बनाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, मतलब कोई भी सीरियस सिचुएशन है, विल डिनाई दोस यू नो सिचुएशन। फिर लाजरस और फोकमैन ने भी दिया था प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड क्या है? अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ विद बिहेवियर्स, ये जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है। तो पहले क्या मान लो प्रॉब्लम क्या है, आप पहले अच्छे मार्क्स ला देते हैं, व्हाट यू डिड, आपने एक शेड्यूल बनाया, POA बनाया, प्लान ऑफ एक्शन, एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग। तो आपने वो प्रॉब्लम में क्या देखा कि आप पहले अपने अच्छे मार्क्स प्लान आपने बनाया, फिर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने लगे, तो यू मेक अ प्लान एंड यू फॉलो इट। इमोशन क्या है? तो इसमें फिजियोलॉजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं टू लिमिट डिग्री। तो मतलब मान लो जैसे सेम आपके भी कुछ इमोशंस जो आपने निकाले नहीं, इट इज देयर इन योर बॉडी है ना, इट इज बीइंग लॉक्ड, आप कुछ कर रहे हो एंड आप मान लो आप मिरर के पास, तो आप अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालो, गुस्सा निकालो, तो यू टेकिंग आउट योर इमोशंस, तो दैट इज इमोशन फोकस्ड। अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट देखते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक देखते हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है? डीप ब्रीदिंग, ठीक है, मेडिटेशन, आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो ना, मतलब द योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस of learned techniques of for refocusing attention and brings about an altered state of consciousness, या आप एक ऐसे फोकस अटेंशन को लाता है that brings about an altered state। then it exercise, it helps in controlling BP, heart rate, strengthens immunity, controls blood, you know, exercise। फिर लाइफ स्किल्स में टाइम मैनेजमेंट, इट हेल्प्स, आपने मतलब शेड्यूल बनाया है ना, राइट। तो थर्ड पॉजिटिव हेल्थ,
उसमें डाइट आ जाएगा, एक्सरसाइज, राइट। एंड हमारा मतलब हमने ऐसी बात किया, हमने शॉर्ट शॉर्ट में कंप्लीट कर लिया है। सो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, आई एम शेयरिंग द पीपीटी ऑल्सो in the description box, so आप उससे भी पढ़ लेना। So thank you guys for watching, I hope you guys like it, please do subscribe and I'll see you soon, thank you।